مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر پرویز ندیم گل ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل اسٹوڈیو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج ہمارے یوٹیوب چینل کا یہ پہلا ٹاک شو ہے اور یہ ایک بہت اہم ٹاک شو ہے جس کو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ویورز آپ نے دیکھا کہ 16 اگست کو جڑاوالا کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا اور اس کے سبب سے بہت سارے مسیحی جو ہیں ان کے گھر جل گئے اور چرچز کو نقصان پہنچا، چرچز کو جلا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے واقعات جیسے کہ بہت ساری ہماری بیٹیاں تھیں جن کے جہیز بھی اس میں جل گئے۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اسی تعلق سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح خدا اس بڑے سانحہ میں کے سبب سے ایک دکھ، ایک غم میں سے لوگ گزرے، ایک مصیبت میں سے لوگ گزرے، لیکن جتنا بڑا یہ سانحہ تھا اس سے بڑی بہت زیادہ خدا نے اس میں سے بھلائی پیدا کی، اور ہم ان تمام لوگوں کو اس میں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ سو ہمارے جو کرسچن بھائی تھے، مختلف آرگنائزیشنز، این جی اوز اور چرچز اور فردن لوگوں نے بہت سارا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، وہاں پہنچے، ان کے اس دکھ کی گھڑی میں ان کو دلاسا دیا، اور نہ صرف دلاسا دیا بلکہ ان کی مدد کے لیے انہوں نے اپنی پاکٹ کو بھی کھولا، اپنے دلوں کو بھی کھولا، اور لوگوں کو دوبارہ سے پھر ری بلڈ کرنے میں ان کی مدد کی۔ اور اسی طرح جڑاوالا کے اندر 11 جو ہے وہ بیٹیوں کا اجتماعی شادی کا پروگرام بھی منعقد کیا گیا، اور آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے ہمارے پیارے بھائی مسٹر سلیم شاکر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں، اور آج ہم ان سے ان کے خیالات کے بارے میں سنیں گے۔ تو ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں بھائی سلیم شاکر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے کال پہ آئے تاکہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ اس سارے پروگرام کے تعلق سے بات کر سکیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی سلیم شاکر جو ہے یہ کرسچن بزنس فیلوشپ کے صدر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سیاسی اور سماجی رہنما ہے۔ سب سے پہلے میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں کہ، اور دوسرے نمبر پاس آپ کا، آپ کے چرچ کا، جنہوں نے آج مجھے یہاں پہ مدعو کیا آپ کے ساتھ مل کے اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں، اور اس کے بعد آپ کے چرچ کا بہت میں مشکور ہوں جنہوں نے شادیوں کے سلسلے میں ہمارے ساتھ اپنا کنٹریبیوشن بھی کیا، دل کھول کے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا، ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہوئے، ہماری حوصلہ افزائی بھی کی، اور ہمیں اچھے اپنے مشورہ جہاں سے نوازا، اور آپ نے اس دن جب یہ پروگرام تھا پورا دن وہاں گزار کے ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ہاتھوں سے ان کو اپنے گھروں میں جو بھیجا ہے، ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ جی ویلکم سر۔ جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ یہ آپ کے دل میں خیال کیسے ہے، تو جب یہ سانحہ واقع ہوا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ پاکستان تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا، اور دنیا میں بھی شاید یہ پہلی دفعہ ہوگا، ایک ہی دن میں 26 چرچز کو اور 2 بستیوں کو جلا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا شہر ہی، جہاں پہ جلاؤ گراؤ نہیں ہوا وہاں پہ لوٹ مار ضرور ہوئی، کیونکہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے، اپنی بیٹیوں کو لے کے، اپنی عزتوں کو لے کے وہاں سے بھاگے، اور جب ان کے گھر خالی ہو گئے تو جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی، یہاں تک ان کے گھر میں کسی نے سبزی تک نہیں چھوڑی، تو جہاں پہ جلاؤ گراؤ نہیں ہوا وہاں پہ بھی لوگوں کو سامان کو لوٹ لیا گیا، ان کے ساتھ انتہائی ظلم ہوا۔ تو جب ہم اگلے دن وہاں جب یہ سانحہ واقع تو گئے، تو بچیاں جو کہ ہماری واقف بھی نہیں تھی، کیونکہ ہاتھوں میں مہندیاں لگی تو ہمارے گلے لگ کے رو رہی تھی کہ ہمارے ماں باپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارا
जेल जलाते और वो दिखा भी नहीं थी। जी बिल्कुल। ये देखिए हमारे घर के साथ सामान के साथ हमारा जेल भी जल गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हमने वो मंजर देखा तो बड़ा, मैं था, मेरे साथ तैमूर संधू साहब थे जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। जी जी। और तो जब हमने वापस आए तो हमने कहा कि हम इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो ख्याल यही है कि हम इन बेटियों के लिए शादियों का बंदोबस्त करते हैं। और यहाँ पे एक बात में और बड़ी जो मैंने इस साना जड़ा वाला में देखी है वो बहुत ही काबिल सताइश है कि हमारी कम्युनिटी में ने बढ़ चढ़ कर उन लोगों की खिदमत करने के लिए कोई ऐसा बंदा नहीं, मैंने नहीं देखा कि जिसमें घर में एक बर्तन भी और उसकी कोशिश की है कि वो भी मैं उनको दे दूं। बिल्कुल ऐसे। हमारी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा जो है ना जज्बा इसमें नज़र आया अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, कि जो हमारे लोग बेघर हैं, जिनको कोई चीज़ नहीं रहेगी, उनके साथ वो तावन करने के लिए पूरी दुनिया में लोगों ने तावन किया। और जब हमने ये देखा बच्चियों के लिए तो फिर हमने अपनी टीम में आपस में आके मीटिंग हुई। हमारे पास कुछ भी नहीं थे, ना हम पास्टर हैं ना हमारी कोई एनजीओ है। जी जी। लेकिन खुदा ने एक ज़हन में ख्याल डाल दिया और उसी से हमने ईमान के साथ, सिर्फ ईमान के साथ वो हम चल पड़े। हम तो इस काबिल भी नहीं है तो कोई सालगिरह जो है ना वो भी कर सके, लेकिन ये खुदा ने मुमकिन किया कि जिस दोस्त के पास हमने गए वही उसने अपनी सता से बढ़कर इन बच्चियों के लिए इनके बच्चियों के साथ प्यार रखने के लिए हमारे साथ तावन किया। और ये जिस दिन ये शादियाँ थी मैंने पासा देखा है कि जैसे खुदा ना खुद उस पंडाल में ना आया हुआ है और हर चीज जो है ना टाइमली और खुद ब खुद होती जा रही थी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो बस ये मुझे ही हुआ है। आमीन आमीन आमीन। ये व्यूअर आपने भाई सलीम शाकर की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, उनके दिल के जो ख्याल हैं आपने सुने। और मैं भी भाई सलीम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चर्च की तरफ से और अपनी सारी टीम की तरफ से कि आपने एक बड़े कॉज में हमें भी साथ शामिल किया। और यकीनन व्यूअर्स उस दिन पूरा दिन हम भी उस जगह पे मौजूद थे। और ये कोई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई 1500 लोगों का इवेंट था, ये कोई छोटा इवेंट नहीं था, एक 1500 लोगों का इवेंट था। और वहाँ एक समा बना हुआ था और खुदा के खादमीन और बहुत सारे बिजनेसमैन लोग, क्रिश्चियन जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे। हमारे मुस्लिम भाई भी वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूशन किया। तो ये एक बहुत बड़ा समा वहाँ पे बंधा हुआ था जिसको हमने देखा और एंजॉय किया उसको। और ना सिर्फ एंजॉय किया बल्कि हमने अपनी उन बेटियों के सरों पर हाथ भी रखे, उनके लिए दुआ भी खादमी ने की, हम सबों ने मिलकर। तो भाई सलीम शाकर साहब, मैं आप एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। वैसे तो हम जानते हैं कि जब खुदा कोई कॉज देता है तो उसके लिए प्रोविजन भी मुहैया भी खुदा ही करता है। तो खुदा ने जब आपको एक बड़ा कॉज दिया और यकीनन मुहैया करने वाला पीछे खुदा है, लेकिन एज ए इंसान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़मीन पर भी जब एक बड़े कॉज के लिए हम खड़े होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने इसका इनिशिएटिव लिया, जब आपने शुरू किया, और आपको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, जिनमें एक दो बातें मैं आपको साथ ये भी करना चाहता हूँ, क्वेश्चन का वो भी हिस्सा है कि बाज़ औक़ात हम जब लोगों को जाके ये बात बताते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिल तो बड़े नरम हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिल बड़े हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। तो ये आप ही बता सकते हैं कि जब आप लोगों के पास गए तो लोगों के रवैये आपके साथ कैसे थे और किस तरह से आपने चैलेंजेस को फेस किया? ये कि ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए पे डाल दिया कि चलो। जी बिल्कुल। हाँ, जब इंसान चैलेंजेस पर ओवरकम करता है तो उसको और ज़्यादा हौसला मिलता है और ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है वो आगे बढ़ने के लिए। बस मैं इसमें एक बात, ये सारा प्रोग्राम ही ना ये मौजूद ही हुआ है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिसको हमने जो बात कह दी ना, यस, ऐसा हुआ नहीं जी कि कह दिया और किसी ने ना इनकार किया, मुमकिन ही नहीं हुआ। खुदा ने पहले बंदे तैयार किए, तुम गए उनके पास है, क्योंकि खुदा ने पहले तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, वेरी गुड। हाँ, कि और जो फ्लैक्स पीछे लगी हुई थी वहाँ पर लिखा हुआ था कि अल्लाह वाले ट्रस्ट। मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स की जानकारी के लिए आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो मुस्लिम
دوست تھے, بہن بھائی تھے, یقیناً جو وہاں پہ موجود تھے, نہ صرف وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے کنٹریبیوشن بھی کیا ہوگا. تو یہ بھی ہمارے ویور جاننا چاہتے ہیں, اور یہ دوسرے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی ایک انکریجمنٹ ہوگی, ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کے لیے بھی ایک انکریجمنٹ ہوگی. اس لیے ویورز یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کس طرح سے, جو آپ کے دوست ہیں, باپ تھے, جاننے والے جو بزنس مین, انہوں نے آپ کے جب آپ نے فنڈ ریز کیا تو. اچھا, اس میں بہت بڑی میں آپ کو گواہی کی بات بتاتا ہوں. یہ جب ہم نے سٹارٹ لیا تو سب سے پہلے نا ایک مسلم دوست ہے میرا جی, وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی بہت اٹیچ ہے. اچھا. میرا بھی دوست ہے, وہ امریکہ میں ہوتا ہے. جی جی, محبوب اسلم اس کا نام ہے. اچھا. تو اس نے مجھے جب یہ سامنے ہوا تو اگلے دن مجھے فون کیا کہ جی یہ بہت بڑا سامنے ہوا, اور یہ ایز اے کمیونٹی مسلم آپ سے شرمندہ ہیں, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے لوگوں نے یہ جو کیا ہے انتہائی غلط کیا ہے. تو آپ ادھر گئے, آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے ان کو بتایا کہ ایسے سے جو لوگوں کے سامان جل گئے, گھر جل گئے, یہ وہ بچیوں کے حوالے سے جب بتایا نا, تو وہ کہہ رہے کہ ایسا کریں آپ نا ان بچیوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی دیکھیں کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اس نے کہا مجھے آپ نا 2-3 دن دے, میں آپ کو بتاتا ہوں, 1 ہفتہ دیں. جی جی. چوتھے دن اس بندے کا فون آ گیا کہ جی یہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں. اچھا. اسے اسی دن 20 لاکھ روپیہ نہ اپنے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا. واہ, ویری گڈ, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. کہ جی یہ آپ اپنی طرف سے جو مرضی ان کو بچیوں کے لیے نا لے کے دے دیں. میں نے کہا جی آپ کی کوئی تنظیم, آپ کا کوئی ادارہ کوئی ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں ان لوگوں کو بتا سکوں. میں نے کہا جی میری کوئی تنظیم نہیں, میرا ادارہ, یہ میں نے اپنی فیملی کی طرف سے نا ویری گڈ یہ پیسے بھیجے ہیں, اور یہی ہے کہ بس میرے لیے نا آپ نے دعا چرچ میں کر دینی ہے. آمین آمین, تو پریز دی لارڈ. یہاں وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا. اس کے بعد جو اللہ والے ٹرسٹ ہے, وہ شاہ لون صاحب, ہم نے ان کے ساتھ پہلے بھی 2-3 پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں. جب کووڈ آیا تھا تو ہم نے اپنے علاقے میں ایک تندور لگایا تھا گراؤنڈ میں, آپ گئے ہوئے تھے, جس میں ہمارے 20% لوگ کرسچن تھے اور 80% جو مسلم ہے نا, وہ وہاں سے ہم نے 2 ٹائم نا سالن بھی وہیں پکتا تھا. ہماری خواتین 2-2 ڈھائی ڈھائی مارنا ایک ٹائم پہ نا وہ سبزی کاٹ کے تو کھانا وہ بناتی تھی, اور تندور لگایا ہوا تھا. صحیح. ایک گھر میں اگر 10 افراد ہیں نا تو ایک ٹائم کا انہوں نے اپنے گھر سے برتن لے کے آنا ہے, اتنے لوگوں کا سالن, اور 10 افراد 20 روٹیاں, 2 روٹیاں پر ہیڈ کے حساب سے نا. مطلب آپ اس میں ان کو کھانا دیتے رہے. ہاں جی, کووڈ کے دنوں میں آپ لوگوں کو وہاں پہ ہم نے کھانا دیا. ہم نے یہ کہا کہ کاروبار بند ہے, ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہمارے لوگ بھی جس ایریا میں رہتے ہیں نا پسماندہ ایریا ہے, تو ہم نے کہا کہ کوئی کسی ہمارے مسیح بہن بھائی کو وہاں پہ کسی کے آگے ہاتھ میں پھیلانا پڑے کہ کاروبار بند ہے تو جی سانو جی جی روٹی دیو یا سارے گھر راشن نہیں گا. تو وہاں ہم نے ایسا کیا. اور جو جس کو بندے کو ہم نے تندور جس کا لگایا تھا نا, وہ بھی مسلم تھا, حاجی صاحب, وہ ہمارے تو گرین ٹاؤن میں رہتا. اس نے کہا جی وہ ایک بندہ ہے جس کا میں اس کا اپنا ایک لنگر خانہ چلتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے ملیں. تو اس کے کہنے پہ میں ان کو شاہ لون کا, وہ میرے ساتھ کے کہنے کہ تسی ملو اس بندے. جی جی. میں اس کے جب پاس گیا تو میں نے کہا جی آپ نے نا ادھر آنا ہے. وہ جب بندہ ادھر آیا تو اس نے کہا جی یہ بتائیں آپ, میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. صحیح. میں نے کہا جی یہ ہے کہ یہ جو کھانا نا ہماری عورتیں بھی 20-25 دن ہو گئے ہیں, بہت تنگ آ گئی, 2 ٹائم ان کو سارا دن بیچارے کو نا کاٹنا پڑتا ہے اور پکانا پڑتا ہے. اسے میں کہا یہ ہے کہ سالن کا ذمہ آپ لے لیں, جو ہے نا روٹی ہم پوری کر لیں گے. اور اس بندے نے کمٹمنٹ کی. اسی ٹائم اس نے نا آرڈر دے دی. ان کا بہت بڑا کچن ہے. صحیح. وہاں سے اس نے اگلے دن سے 2 ٹائم کھانا تازہ پک کے, یعنی کہ سالن آ جاتا تھا, روٹیاں وہاں لگتی تھی. تو اس طرح ہمارا ان کے ساتھ نا ایک ریلیشن بن گیا. ویری گڈ. تو جب اس کو یہ بھی شادیوں کا سلسلہ آیا نا, تو میں نے ان کو لون صاحب کو فون کیا کہ شاہ لون صاحب, ہم نا یہ اس طرح جڑا والا میں جو بچوں کو جل گیا نا, اس کی ان کی جو ہے نا شادیاں کرانا چاہتے ہیں, تو کھانا آپ نے دینا ہے. نے کہا جی کیا کھانا دینا ہے؟ میں کہا جی پوری 1 ڈش. صحیح. تو کہہ رہا کتنے لوگوں کا؟ میں 1400-1500 ہو گئے. میری 1 سے 1.5 منٹ ان کے ساتھ بات, ان کا جی ڈن ہو گیا.
वेरी गुड, प्रेज द तो ये लोग, मैं समझता हूँ खुदा ने उनको तैयार किया था। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारे जब क्रिश्चियन दोस्तों के साथ भी गए, उन्होंने भी इस तरह मिलते गए और खुदा ने ये सारा मुमकिन किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन व्यूअर्स, हम भी जब वहाँ पे थे तो ये जो शाहिद लोन साहब हैं, ये अपनी वाइफ के साथ भी वहाँ पे मौजूद रहे। जब तक रुश्ती हो नहीं गई वो वहाँ पे मौजूद रहे, और उन्होंने भी लड़कियों को, जो लड़के और लड़के जिनकी शादी थी, उनके सरों पर हाथ रखा। ना सिर्फ इतना बड़ा उन्होंने इतने लोगों का खाना दिया, बल्कि उन्होंने अपनी मोहब्बत जो है वो वहाँ आकर जाहिर की और उनके सरों पर हाथ रखा। और यहाँ पर मैं व्यूअर्स आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि खलकत की जो खिदमत है वो करने के लिए किसी NGO का होना ज़रूरी नहीं है। खुदा किसी को भी उठाकर इस्तेमाल कर सकता है। खुदा जो है वो, अक्सर हम बात करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कोई NGO आए या कोई ऑर्गेनाइजेशन आए और वो जो है वो लोगों की हेल्प करे। नहीं, जिस तरह से हमारे प्यारे भाई सलीम शाकर हैं, तो कोई NGO नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो बहुत सारी NGOs भी उनके साथ मिल गई। तो इस बात पढ़ा रहा हूँ जी। इसी तरह जैसे खुदा ने कहा ना, तो उसने हम नकम्मों और कीड़ों को ना इस्तेमाल किया। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यकीनन जब कोई भी इंसान खड़ा होता है तो खुदा उसके पीछे खड़ा हो जाता है। तो एक और सवाल, क्वेश्चन जो है भाई सलीम शाकर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बड़ी कामयाबी है जो आपने हासिल की, आपकी टीम ने हासिल की। और जब बंदा किसी बड़े कॉज में कामयाब होता है ना, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, उसको जब एप्रिसिएशन मिलती है तो उससे उसके जज्बे जो है, बलबले जो है वो और हाई हो जाते हैं। तो यकीनन इस वक्त आप भी इसी आलम से गुजर रहे हैं, और इस सारे में जब आपने ये सारा कुछ किया और आपको एनर्जी मिली, तो आगे अगर हम पूछना चाहेंगे कि फ्यूचर में भी यकीनन अब आपके और बहुत सारे प्लान्स होंगे और बहुत सारे मंसूबे आपके दिल में आ रहे होंगे कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए, हम अपने लोगों के लिए, हम इंसानियत के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे होंगे आप। तो मैं होप ऑफ ग्लोरी यूट्यूब चैनल तमाम व्यूवर्स को जो देखते हैं, उनके लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगला जो है आपका मंसूबा क्या है जो आप करने जा रहे हैं, या एक मंसूबा है या बहुत सारे मंसूबे हैं, ये आपके दिल में है। सो व्यूअर ये जानना चाहेंगे। क्योंकि जी हम एक छोटा सा कारोबार लोगों का, दोस्तों का ग्रुप है। जी जी। एक और मैं बड़ी गवाही की बात सुनाता हूँ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत ज़्यादा हमारे क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं जो अरबपति हैं, जिनकी 5-5, 6-6 फैक्ट्रियाँ हैं। वहाँ बड़ी देर से उनके मेंबर्स हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था किसी को हमारी कम्युनिटी के बंदे को, किसी को ना, उधर मुख्तलिफ किस्म की ना स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं। जी जी। किसी को किसी कमेटी में उन्होंने कोई चैम्बर वालों ने कोई ओहदा दिया हो। जी जी। ये खुदा की तरफ से मुमकिन हुआ। मैं तो बिल्कुल छोटा सा कारोबारी बंदा हूँ। जी जी। इंतहाई छोटे दर्जे का। जी जी। तो वहाँ खुदा ने ये मुमकिन किया कि मुझे उन्होंने ह्यूमन राइट्स, पहले इंटरफेथ हार्मनी और अभी ह्यूमन राइट्स कमेटी का जो है ना कन्वीनर मुकर्रर किया है, यानी कि चेयरमैन मुकर्रर किया है। और ये सिर्फ खुदाम के जलाल के अलावा और हो नहीं सकता था। तो हमने जब वहाँ पे गए चैम्बर में तो देखा कि मुख्तलिफ ताजर तंजीमें हैं जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने बनाई हुई हैं। कोई प्यार के नाम से, कोई फाउंडर के नाम से, कोई कायदेज़न ग्रुप, कोई मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बने हुए हैं ना, जो कारोबार लोगों ने आपस में बनाए हुए हैं। जी जी। लेकिन हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं। तो हमने वहाँ पे क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप बनाई ताकि हमारे क्रिश्चियन जो लोग हैं इनको आपस में जोड़ा जाए और एक कारोबार आपस में चेन बनाई जाए। जी जी। कि ना सिर्फ ये कि जो कुछ लोग तंजीमें हैं जो कागज पे काम कर रही है, ऑन ग्राउंड काम किया जाए, रियलिटी है उसके अंदर। और उसके लिए हमने लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब का, काशिफ अनवर साहब का, जो मौजूदा प्रेसिडेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज दी है कि हम अपने बच्चों को वहाँ पे IT की और मुख्तलिफ बिजनेस की ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। वाह, वेरी गुड। तो अभी चूँकि हमारा तल्लुक एक कारोबारी तबके से है और हम देख रहे हैं कि हमारे लोग कारोबारी तौर पे बहुत पीछे हैं। तो हमारा जो फ्यूचर में प्लान है, हमने अगले 10 सालों में
100 लोगों को, अपने 100 खानदानों को, छोटी जो होती है ना होम इंडस्ट्रीज, जिनको कॉटेज इंडस्ट्रीज या होम इंडस्ट्रीज का नाम दिया जाता है, वो लगा के देनी है। और ये भी हमने 10 साल का टारगेट रखा, लेकिन खुदा ने चाहे तो ये 5 साल में मुमकिन होगा। और इसमें हम खुदा के फजल से, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से कहा, ये खुदा की आवाज़ है और हमने इसमें कामयाब। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम इसके लिए भी आपको अप्रिशिएट करते हैं ये जो आपका अगला प्रोग्राम है, जो मंसूबा है, और साथ साथ जो आप जिस कामयाबी के साथ पिछला जो है उसको आपने पाया तकमील तक पहुंचाया, हम उसके लिए भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपकी सारी टीम को हम अपने YouTube चैनल पे और सारी टीम हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और हम इसके लिए दुआ गो भी हैं कि जो आपके विजन्स हैं, जो आपके गोल्स हैं एज ए कम्युनिटी के लिए, एज ए अपने लोगों के लिए, जो दर्द खुदा ने आपको दिया है, खुदा हमेशा आपके लिए आसमान को खुला रखे और आसमान पर से बरकत जो है वो नाजिल होती रहे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ एज ए खुदा का खादम, मैं ये समझता हूँ कि खुदा के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती। हमारे लिए नामुमकिन, लेकिन खुदा के लिए मुमकिन है। क्योंकि जब खुदा कोई विजन देता है तो खुदा लोगों को भी हमारे लिए मुकर्रर करता है, और खुदा लोगों के दिलों को भी हमारे लिए खोलता है। यकीनन ये इसका तजर्बा तो आपने कर लिया होगा, लेकिन हम इन सारी चीज़ों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और व्यूअर्स, प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, तो हम इस बड़े इवेंट के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो जड़ावाला के अंदर हुआ है। और हम इसके साथ साथ उन तमाम अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को भी अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने वहाँ पर जाके अपनी पॉकेट से एक पैसा भी वहाँ पे लगाया और अपने भाइयों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और यकीनन शायद पैसा नहीं भी दिया, लेकिन उस दुख और गम में जाकर उनके कंधे पर जब उन्होंने हाथ रखा तो उनके जाने से उनको तसल्ली मिली। तो हम अपने तमाम उन बहन भाइयों को भी अप्रिशिएट करते हैं। और इस सानिया के सबब से एक चीज़ भाई सलीम शाह साहब मैं आपको बता दूं जो मुझे बड़ी इंस्पायर करती है, जिसमें मैं खुदा की भलाई को देखता हूँ, वो ये है कि इसमें इस वक्त जो क्रिश्चियन जो हैं उनके अंदर एक यूनिटी की फजा हमें नजर आती है। यानी कि लोग जो हैं जैसी है कि वो जब ऐसा वाक़या हुआ तो लोग जड़ावाला की तरफ भागे जा रहे हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत साइन है, ये मोहब्बत और यूनिटी। हम दुआ गो है कि ये इसी तरह कायम रहे हमारे बहन भाइयों को, जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो, ना सिर्फ सानिया में बल्कि नहीं, जब जब भी आप किसी को ज़रूरतमंद देखें, आप जो भी उसकी ज़रूरत में हिस्सा डाल सकें। तो व्यूअर्स, हमें इनिशिएटिव लेने हैं, हमने शुरू करना है, तकमील तक खुदा ने पहुंचाना है। जिस तरह खुदा ने ये वाला शादियों का जो इवेंट है, इसका इनिशिएटिव हमारे प्यारे भाई सलीम शाह ने लिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको तकमील खुदा ने दी है, इसको अंजाम तक खुदा ने पहुंचाया है। तो हम अपने खुदा का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं भाई सलीम शाकर आपके आने वाले जो मंसूबे उनके लिए और आपके ख़ानदान के लिए और आपकी टीम के लिए दुआ करना चाहूँगा। एज ए खुदा का खादम मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। ये बस अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। मैं आपको रिक्वेस्ट में यही करने वाला था कि मैं इस काज के लिए, मेरे लिए और अपनी कौम के लिए दुआ करें। आपकी चर्च से भी यही रिक्वेस्ट है कि इसको दुआ में रखें। जी जी, हम दुआओं में भी आपके साथ हैं, और जहाँ जहाँ हमें आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है, आप हमेशा हमें अपने साथ पाएंगे। सो इस कॉज में जो खिदमत का कॉज है, आप हमें अपने साथ पाएंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। हम मिलकर दुआ करते हैं। आइए अपने सर को झुकाएंगे व्यूअर्स, हम दुआ करेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, न सिर्फ तूने हमें निजात अता की है, अपनी अलाही मोहब्बत को अपने बेटे के वसीला हमारे दिलों में डाला है, और अपने बेटे के वसीला हमें रास्तबाज ठहराया है। और इसके साथ साथ खुदा तू है जो हमें इस्तेमाल करता है। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है खिदमतें और भलावे जो हैं वो खुदावंद की तरफ से हैं और वो ला तब्दील हैं। और तूने हमारे प्यारे भाई सलीम शाकर को इस खिदमत के लिए बुलाया और एक बड़ी टीम उन्हें अता की है, जिसका हम भी हिस्सा हैं। और खुदावंद जो भी उनके मंसूबे हैं, जिसको उन्होंने आज व्यूअर्स के साथ भी शेयर किया, स्टूडियो में हमारे साथ भी शेयर किया, हम तेरे हजूर से मिन्नत करते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से
ऐ बाप, तमाम जो रुपया पैसा है, तमाम जो माली माउनत है, वो तेरे हजूर से तेरे लोगों के लिए मुमकिन हो, ताकि खुदा जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि वो अपने मसीही बहन भाइयों को खिदमत जो है बिजनेस जो है वो उसके लिए उनको असिस्ट कर सकें, उनकी मदद कर सकें। तो खुदावंद इन्हें बरकत दे, तेरा आसमान सदा खुला रहे। और उनकी सारी टीम के लिए, भाई सलीम शाकिर साहब के लिए, उनके खानदान के लिए, उनकी टीम के लिए और उनके घरानों के लिए ऐ बाप हम यीशु मसीह नासरी के नाम से बरकत की दुआ करते हैं। और तमाम होप ऑफ ग्लोरी यूट्यूब चैनल देखने वाले व्यूवर्स के लिए भी और इनके खानदानों के लिए भी ऐ बाप हम तेरे हजूर से बरकत चाहते हैं। तेरा आसमान सदा खुला रहे और तेरी बरकत नाज़िल होती रहे, और जिस जिसकी जो भी जरूरत है ऐ बाप तेरे अलाई खजानों से पूरी हो। तेरे लोगों को किसी चीज की कमी ना आए। और अगर जो देखने वाले हैं अगर उनमें कोई बीमार है तो वो भी तेरी कुदरत के सबब से, तेरे बेटे यस्सु नाम के सबब से वो शफा पा जाएं। तेरा कवी और कादर हाथ बढ़ा रहे, मसीह यस्सु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम के वसीला से, आमीन आमीन। व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। दोबारा मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ। भाई सलीम शाकिर साहब, हम एक बार फिर से आपके दिल से शुक्रगुजार है कि आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे स्टूडियो में आए। सो गॉड ब्लेस यू सर, आपका शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा जी, आपने मोहब्बत जी जी वेलकम, गॉड ब्लेस यू। तो व्यूअर्स, हम आप सबों के शुक्रगुजार हैं कि आप होप ऑफ ग्लोरी यूट्यूब चैनल को देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं और उसको लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं हम इस बात के लिए। और अब तक बहुत सारे लोगों ने इसे सब्सक्राइब भी किया है। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को जो है आप इसको वॉच करें, इसको शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके जो लाइक्स हैं वो हमारे लिए एक्स्ट्रा एनर्जी का काम करते हैं। आपकी जो एप्रिसिएशन है वो हमें और एनर्जी देती है कि हम और आगे बढ़ सकें। और इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और इसे वॉच भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि आप भी हमारे साथ इस खिदमत का हिस्सा बन सके। मे गॉड ब्लेस यू।